اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 18 نمبر سورہ الکاف، اس کی پہلی آیات، سب تعریف اللہ کی جس نے نازل کیا اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی کا پتہ ہوتا ہے کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی ایک مطلب نا ٹیڑھی میڑھی بات نہیں، مکمل طور پہ فصیح البلیغ قرآن مبین، کھلی کتاب۔ نمبر 2، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی تاکہ خبردار کرے عذاب سے اور خوشخبری دے مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ 27 نمبر آیت، اور بتاؤ جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، نہیں کوئی بدلنے کا مجاز اس کی باتوں کا۔ یہ کئی دفعہ یہ کفار کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو کہ تم کچھ بات ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، تو تم قرآن میں یہ والی بات نہ کرو، نکال دو۔ تو حکم ہوا کہ تم کچھ، وہ نبی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہوں، وہی جو آئی ہے وہی ہے، اور وہی میں نے منوان جو ہے وہ پہنچانی ہے، اس میں کوئی تبدیلی تحریف نہیں کر سکتا۔ اور بتاؤ جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب سے، نہیں کوئی بدلنے کا مجاز اس کی باتوں کا، اور ہرگز نہ پاؤ گے کوئی جائے پناہ اس کے علاوہ۔ 54 آیت، اور یقیناً طرح طرح سے بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کا مضمون، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن انسان جھگڑالو ہے۔ 56، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر کہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، بشیرم و نذیرم، جبکہ جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر جھوٹی باتیں بنا کر تاکہ نیچا دکھائیں ان سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے ہماری آیات کو اور تنبیہات کو جو انہیں دی گئی تھی مذاق، یعنی ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ 57 نمبر آیت، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو یاد دلائی جائیں نشانیاں اس کے رب کی اور وہ منہ پھیر لے ان سے اور بھول جائے اپنے انجام کو، جس کا اہتمام اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ بے شک ہم نے چڑھا دیے ہیں ان کے دلوں پر غلاف تاکہ نہ سمجھ سکیں قرآن کو، اور پیدا کر دیا ان کے کانوں میں بہرا پن کہ اب اگر تم انہیں بلاؤ سیدھے راستے کی طرف تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ 29 نمبر آیت، اور کہو، سورہ الکاف ہی چل رہی ہے، اور کہو یہ حق ہے یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے، سو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ آگے چلتے ہیں سورہ کاف کے بعد اگلی آیت، اگلی سورہ 19 نمبر مریم مینس حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کے نام پہ ہے۔ 97، وہی جو میں بار بار کہتا ہوں، بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو یعنی قرآن کو تمہاری زبان میں تاکہ خوشخبری دو تم اس سے متقیوں کو اور ڈراؤ اس سے ہٹ درم لوگوں کو۔ سورہ طے 20 نمبر سورت، اس کی 2 نمبر آیت، نہیں نازل کیا ہم نے تم پر یہ قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو ڈھارس بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم مشقت میں ڈالنے کے لیے تم نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ نمبر 3 آیت، بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نمبر 4، نازل کیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند و بالا آسمانوں کو۔ 99 آیت، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے خبریں
गुजरे हुए हालात की, और यकीनन अता की है हमने तुम्हें अपनी तरफ से एक नसीहत, मौइज़ातन यानी कुरान। 100 नंबर आयत, जिसने मुंह मोड़ा यानी इस कुरान से तो यकीनन उठाएगा क़यामत के दिन बड़ा बोझ। 113 नंबर आयत, और इसी तरह नाज़िल किया हमने ये कुरान अरबी में, और बार बार दोहराया है हमने इसमें वईद कि शायद लोग मुत्तकी बने और अपने अंदर समझ बूझ पैदा करें। 114 नंबर जुज़ है, और मत जल्दी करो कुरान पढ़ने में इससे पहले कि पूरी पहुँचे तुम तक वही। कुरान में 2-3 दफ़ा आया है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करो, समझ समझ के पढ़ा करो। यहाँ पे फरमाया कि मत पढ़ो जल्दी करने में कुरान, बेशक मुखातब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हम भी मुखातिब हैं। अब 21 नंबर अंबिया सूरत 45 नंबर आयत, कहो बेशक मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ तुमको वही के ज़रिए से। 108, और कहो बेशक वही भेजी जाती है मेरी तरफ, क्या कि बेशक तुम्हारा महबूद इलाह वाहिद है, ताकि तुम मुसलमान बनो। जो कुरैश थे, जो मुशरिक थे, वो अल्लाह को भी मानते थे और बुतों को भी मानते थे। ये शिरक होता है, अल्लाह के साथ दूसरे लोगों को, ये शिरक होता है, इसी को कहते हैं शिरक, शरीक बनाते थे। यह हुक्म है कि तुम्हारा मबूद एक ही है, अल्लाह वाहिद। 22 नंबर सूरत हज 52 नंबर आयत, और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले रसूल और ना कोई नबी इल्ला कि जब उसने तलावत की तो शैतान मुखर हुआ उसकी तलावत में, फिर मिटा देता रहा, फिर मिटाता रहा अल्लाह उस दखल अंदाजी को शैतान की, फिर पुख्ता करता रहा अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह बेशक हलीम है और रहीम है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि नबियों को भी शैतान वसवसे डालता था। और इस आयत की रूह से, सूरह हज की 52 नंबर आयत की रूह से, शैतान हर नबी को वसवसे डालता था। और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले रसूल और ना कोई नबी इल्ला कि जब उसने तलावत की तो शैतान मुखल हुआ उसकी तलावत। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उसकी जो दखलंदाजी है उसको ख़त्म कर देता था और अंबिया को पुख्ता कर देता था। फिर सूरह अंबिया की 5 नंबर, हाँ सूरह अंबिया की 5 नंबर आयत, बल्कि कहा उन्होंने कि ये कुरान प्रगंदा ख्वाब हैं, नौज़ुबिल्लाह, बल्कि ये भी कि घड़ लिया है ये इसने, बल्कि ये शायर है। अच्छा तो चाहिए कि ये लाए हमारे सामने कोई निशानी, जैसे कि भेजे गए थे पहले रसूल। अब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों के बारे में सुना हुआ था, उनमें से जो ईसाई थे, यहूदी थे, मुशरिक भी थे, तो कहते थे कि ये कुरान तो खुद घड़ लेता नौज़ुबिल्लाह, और ये तो बड़ा अच्छा शायर है, तो इसको कोई निशानी हमें दिखाए। 10 नंबर आयत, बेशक नाज़िल की हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम फिर भी नहीं समझते। 50 नंबर आयत, और ये कुरान नसीहत है बाबरकत जिसे हमने ही नाज़िल किया है, तो क्या फिर भी तुम इनकारी हो। सूरह हज 22 नंबर की आयत 16, और इसी तरह नाज़िल किया हमने कुरान को खुली खुली निशानियों में, और यकीनन अल्लाह ही देता है हदायत जिसे चाहे। 54, जान लें कि वो लोग कि जिन्हें दिया गया इल्म बेशक कुरान हक है तुम्हारे रब की तरफ से, फिर वो ईमान लाएं उस पर और झुक जाएं उसके आगे उनके दिल, और यकीनन अल्लाह हदायत देता है उनको जो ईमान लाए सीधे रास्ते की तरफ। 72 नंबर आयत सूरह हज की, और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी वाज़े आयात तो नज़र आता है तुमको उनके चेहरे पर नापसंदीदगी, जो काफिर हैं लगता है ये टूट पड़ेंगे तलावत करने वाले पर। कहो क्या बताऊं बुरी चीज़ इससे भी, वो आग है जिसका अल्लाह ने वादा किया है काफिरों से। अब आगे चलते हैं। 23 नंबर सूरह मोमिनून, उसकी आयत नंबर है 62, और हमारे पास एक किताब है जो बयान करती है ठीक ठीक, और लोगों पर बहरहाल जुल्म नहीं किया जाएगा। ये पार्ट है 62 का जुज़ है।
66 में फरमाया यकीनन हमारी आयत पढ़कर सुनाई जाती थी तुम्हें तो तुम उल्टे पांव फिर जाते थे। 67 मुतकब्बर बनकर उस पर फबतियाँ कसते या यावा कोई करते। 68 पार्ट है जुज बस नहीं गौर किया उन्होंने इस कलाम पर। 71 बल्कि लाए, ये भी जुज है, बल्कि लाए हैं हम उनके सामने उनके लिए जिक्र यानी कुरान और अपने ही जिक्र से ये मुंह मुड़े हुए हैं यानी कुरान से। अगली है सूरह नूर 24 नंबर 34वीं आयत है और यकीनन नाज़िल किया है हमने तुम्हारी तरफ ऐसे अहकामात जो वाज़े हैं और मसालें उनकी जो गुजर चुकी हैं तुमसे पहले और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। 46 नंबर आयत बिलाशुबा नाज़िल किए हमने ऐसे अहकाम जो वाज़े हैं और अल्लाह ही हिदायत देता है जिसे चाहे सिरातम मुस्तकीम की। सूरह नूर की पहली आयत है यह सूरत जिसे नाज़िल किया हमने और फ़र्ज़ किया और नाज़िल की इसमें वाज़े आयात ताकि तुम नसीहत हासिल करो। आगे 25 नंबर सूरह फुरकान नंबर पहली आयत बहुत बाबरकत है वो जिसने नाज़िल किया अल फुरकान अपने बंदे पर ताकि वो पूरे जहां वालों को खबरदार करे। नंबर 4 कहते हैं काफिर लोग कि नहीं है ये यानी कुरान मगर एक मन घड़त चीज़ जिसे घड़ लिया इसने खुद ही और मदद की है इस काम में इसकी कुछ लोगों ने। बहुत बड़ा गंदा इल्ज़ाम बरघनौना दरअसल उतर आए हैं ये लोग जुल्म पर और झूठ पर। नंबर 5 कहते हैं कि ये कहानियां अगले लोगों की लिख ली है उसने फिर उसे सुनाई जाती हैं सुबह शाम। नंबर 6 कहो नाज़िल किया है उसको जिसने जो जानता है राज आसमानों और ज़मीन के बेशक वो है माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। 30 नंबर आयत बहुत ज़बरदस्त है और कहेगा रसूल है मेरे रब यकीनन बना लिया था मेरी कौम ने इस कुरान को निशाना-ए तज़हीक और छोड़ रखा था उसे। अब गौर करें मुसलमानों क्या हम भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा लिया कि हमने कुरान को मजाक बना लिया है। न समझते हैं ना दूसरों को समझाते हैं ना इसके अहकामात पर अमल करते हैं। 32 नंबर आयत और कहते हैं काफिर लोग क्यों नहीं उतारा गया इस पर कुरान एक ही बार इसलिए कि कवि कर दें हम इस तरह तुम्हारा दिल और उतारा है हमने उसको ठहर ठहर कर। 29 नंबर यकीन वो वजह ये थी वो इसलिए कहते थे कि ये कभी किसी दिन आके बताता है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जी आज ये वही नाज़िल हुई है फिर कई दिन नहीं होती फिर किसी दिन आगे तो ये खुद घटता है तो एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाज़िल होता है इसके ऊपर कुरान ताकि हम भी देखें। और उसका अल्लाह ने जवाब दिया। 29 नंबर आयत यकीनन बहका दिया उसने मुझे ज़िक्र से इसके बाद कि वो आ गई मेरे पास और है शैतान इंसान को जलील करने वाला। ये 25 नंबर सूरत फुरकान की आयत थे। अब हम 26 नंबर सूरत की अशोरा जिसका नाम है उसकी आयत में तिलावत करते हैं। दूसरी आयत ये आयात हैं उस किताब की जो बहुत वाज़ेह है जो बहुत वाज़ेह है। नंबर 5 जब भी आता है उनके पास जिक्र रहमान की तरफ से नया तो ये उसे मुंह मोड़ लेते हैं। 192 नंबर और यकीनन ये नाज़िल करता है तमाम जहानों के रब की तरफ से। नंबर 193 उतरे हैं उसे लेकर रूहुल अमीन यानी जिब्रील। 194 तुम्हारे कल्ब पर ताकि हो जाओ तुम मुतनब्बे। 195 ये अरबी ज़बान में बिल्कुल वाज़ेह है। 196 और यकीनन यही पैगाम मौजूद है पहली उम्मतों की किताबों में भी यानी इब्राहिम के सहीफ़े तौरात इंजील वगैरह में। 197 क्या नहीं है उनके लिए निशानी कि जानते हैं उसे बनी इसराइल के उलमा। 198 और अगर हम नाज़िल करते उसे किसी अजमी पर और पढ़ कर सुनाता
उन्हें तो ये ना लाते उस पर ईमान अहले अरब, यानी ये अरबी में नाजल हुआ है और अरब ही बंदा है जो तुम्हारा रसूल है, उसी पर नाजल हुआ है। तो अगर हम किसी अजमी पर उतार देते तो अहले अरब तो बिल्कुल इनकार कर देते। 199 अगर हम नाजल करते उसे किसी अजमी, हाँ ये हो गया। 210 और नहीं लेकर उतरते इसे शैतान। 211 वो ये कहते थे कई उनमें से कि ये इसको शैतान आके सिखाते हैं और पढ़ाते हैं, नौजुबिल्ला। 211 नंबर आयत, और नहीं ज़ेब देता उनको और ना उनकी इस्तिताअत है, यानी शैतानों की। 212 बेशक वो उसकी गुन सुन से भी माजूल किए जा चुके हैं, यानी पहले ही होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, कुरान नाज़िल होने से पहले जो शैतान थे या जिन थे वो ज़मीन और आसमान के मतलब दरमियान में फिरते रहते थे, और जब भी कोई पैगाम आता तो उछक लेते थे, तो उसमें तब्दीली मॉडिफिकेशन कर देते। तो कुरान उतरने से पहले अल्लाह ने इस तमाम शैतानों को मतलब पाबंद कर दिया कि अब वो किसी भी किस्म का पैगाम उचक नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह कह रहा कि बेशक अब वो उसकी सुन गुन से भी माजूल किए जा चुके हैं। अगली सूरत है 27 नंबर नमल, इसकी 86 आयत है। हत्ता के जब आ जाएंगे वो सब तो कहेगा क्या तुमने झुठलाया हमारी आयत को। ये रोज़े महशर की तरफ बयान है, सूरह नमल 27 की पहली आयत। ये आयत हैं कुरान की। मेरा ख्याल हम यहाँ पे लेक्चर का इत्माम करते हैं, तो इंशाअल्लाह देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।